Welcome everyone. Today we will study chapter 10 of book Our Past part 2nd. The name of chapter is 18th century political formation. 18th century political formation. स्वागत है सभी का। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 10 हमारे अतीत भाग 2 बुक का। चैप्टर का नाम है 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। Dear students, in this chapter we will roughly see the different political formations and the happenings which have arisen during time period from 1707 to 1761. Now look at the map. Here are two different maps. Here you can see the different independent states that emerged after the disintegration or the break of the Mughal Empire. This is the boundary you can see of the Mughal Empire. This dashed line is the boundary of the Mughal Empire. Okay, here it is. Okay, this was the area under the Mughal control, but after 1707, death of Aurangzeb, this whole area was divided into independent states. So, if you look at these maps closely, something significant happening in the subcontinent during the first half of the 18th century. में काफ़ी सारी चेंजेस देखने को मिली हैं. Notice how the boundaries of the Mughal Empire were reshaped by the emergence of the independent kingdoms. है ना, छोटे छोटे जो किंगडम्स थे वो स्वतंत्र होना शुरू हो गए. By 1765, Britishers also controlled the major areas in the east of our country. ठीक है, बंगाल वाला ये वाला एरिया जो आपको दिख रहा है ये ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल करना शुरू कर दिया by 1765. This map tells us political conditions in the 18th century. 18th century यानी 1701 से ठीक है 1799 तक की जो सिचुएशन है. हम देखते हैं कि इस छोटे से टाइम पीरियड में है ना इन 100 सालों में जहाँ इन 1707 से 1761 के बीच कितनी सारी चेंजेस आ जाती हैं हमारे सब कॉन्टिनेंट में. In a relatively short span of time, India changed quite dramatically. Okay, in this chapter we will read about the emergence of new political groups in the subcontinent यानी इंडिया में during the first half of the 18th century, roughly from 1707 when the Aurangzeb died till the third battle of Panipat in 1767. Okay, this is the time period we are going to study. 1707 to 1761. 1707 में क्या हुआ, औरंगजेब की डेथ हो गई, औरंगजेब की मृत्यु हो गई और इसके बाद मुगल साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया क्योंकि उसके बाद जो भी रूलर्स आए, एम्पायरर्स आए, वो कंट्रोल नहीं रख पाए इतने बड़े एम्पायर पे, इतनी बड़ी टेरिटरी पे. ओके, so we are going to study about the time period from 1707 to 1761. इस टाइम पीरियड की हम स्टडी कर रहे हैं इस चैप्टर में 1707 to 1761. Okay, clear? Now we will see the crisis of the empire and later Mughals. Later Mughals means after Aurangzeb, after 1707. In chapter 4 you have already seen how Mughal Empire reached the height of its success. Okay, how Mughals have सब मुगल ने इतनी बड़ी टेरिटरी पे किस तरह से कंट्रोल किया, साउथ की तरफ एक्सपीडिशंस चलाई है ना,
और इतना एरिया अपने कंट्रोल में ले लिया। टुवर्ड्स द क्लोजिंग ईयर्स ऑफ द 17th सेंचुरी यानी 1699 तक काफ़ी एरिया कंट्रोल कर लिया गया था। these were factors, these were caused by number of factors, these were caused by number of factors। ये क्राइसिस क्यों आया, ये क्राइसिस क्यों आया, इसके बहुत सारे कारण थे। एक तो औरंगजेब ने मिलिट्री और जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे उसके एम्पायर के, उसने वो ख़त्म कर दिए थे, है ना। कैसे, दक्कन पे कंट्रोल करने के लिए, वहाँ के एरिया को अपने कंट्रोल में लाने के लिए जो भी ट्रेजरी थी, जो उसके पास पैसा था वो सब खर्च कर चुका था। अंडर हिज सक्सेसर्स द एफिशिएंसी ऑफ द imperial administration broke down. Okay, it became increasingly difficult for the later Mughal emperors to keep a check on the powerful मनसबदार। जो भी मनसबदार थे इन पर कंट्रोल कर पाना इन मुगल एम्पायर के लिए बहुत मुश्किल हो गया। ठीक है, जो नॉबल्स थे उन्होंने अपॉइंटेड किए थे गवर्नर्स। गवर्नर्स को क्या बोलते थे, सूबेदार्स। ठीक है, इन सूबेदार्स को उन्होंने अपॉइंटेड किया था जो रेवेन्यू और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिस को कंट्रोल करते थे। रेवेन्यू यानी दीवानी बोलते हैं रेवेन्यू को, एंड फौजदारी यानी फौजदारी मीन्स मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। फौजदारी मीन्स मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। So these novels have controlled, these novels have appointed सूबेदार। इस तरह से ये क्या करते थे, दिस गेव देम एक्स्ट्राऑर्डिनरी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पावर्स। ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी बहुत ज़्यादा पावर्स किसको मिल गई थी, किसको मिल गई थी, जो भी ये नॉबल्स थे। ठीक है, इन्होंने काफ़ी सारा एरिया में अपना पावर बना ली थी। एज द गवर्नर्स कंसोलिडेटेड देयर कंट्रोल ओवर द प्रोविंसेस द पीरियडिक रिमिशन ऑफ द रेवेन्यू टू द कैपिटल डिक्लाइन। ना, तो गवर्नर्स ने जब कंट्रोल करना शुरू कर दिया, रेवेन्यू मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन सबको, तो जो रेवेन्यू जाता था मुगल्स को वो कम होना शुरू हो गया। ठीक है, peasants and zamindari rebellions in many parts of northern and western India added to these problems। अब ये peasants और जमींदारी रिबेलियन से इनकी वजह से भी, इनके विद्रोह की वजह से भी प्रॉब्लम्स बढ़ी, यानी मुगल एम्पायर को और ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। ये रिवॉल्ट्स किसकी वजह से हो रही थी, माउंटिंग टैक्सेस, यानी टैक्सेस बढ़ा रखे थे, है ना, टैक्सेस बढ़ा रखे थे और उसके खिलाफ ही ये सब हो रहा था। ये रिबेलियंस हो रही थी, विद्रोह हो रहे थे। एट अदर टाइम्स अटेम्प्ट्स ऑफ बाय पावरफुल चीफ्स टू कंसोलिडेट देयर ओन पोजीशन, है ना, कुछ सरदार अपनी पोजीशन को स्ट्रांग करने के लिए भी ऐसा कर रहे थे। ठीक है, रिबेलियन कर रहे थे, मुगल अथॉरिटी के विरुद्ध खड़े हो गए थे। मुगल अथॉरिटी को पहले भी चैलेंज बड़ी बार किया जा चुका था। दिस ग्रुप्स नाउ एबल टू सीज द इकोनॉमिक रिसोर्सेज, है ना। अब किस तरह से वीक कर रहे थे मुगल एम्पायर को, इकोनॉमिक रिसोर्सेज को सीज करके, है ना, और अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट करते जा रहे थे। मुगल एम्पायर औरंगजेब वर अनेबल टू अरेस्ट द ग्रेजुअल शिफ्टिंग ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक अथॉरिटी इनटू द हैंड ऑफ प्रोविंशियल गवर्नर्स, है ना। मुगल एम्पायर औरंगजेब भी नहीं रोक सका इस चेंज होती सिचुएशन को, वो भी इस चेंज होती सिचुएशन को नहीं रोक सका जब ये गवर्नर्स पावरफुल होते जा रहे थे और अपने अपने एरिया में ये अपने आप को इंडिपेंडेंट बताने लगे थे। यहाँ पे एक राइटर का अकाउंट है, कंटेम्प्ररी राइटर अकाउंट है, जिसने फाइनेंशियल बैंकरप्सी ऑफ द एम्पायर, यानी मुगल एम्पायर की दिवालियेपन के बारे में लिखा है। रिच हार्वेस्ट एंड एम्प्टी कॉफर्स, रिच हार्वेस्ट एंड एम्प्टी कॉफर्स, यानी फसल तो अच्छी हो रही थी लेकिन फिर भी रेवेन्यू नहीं दिया जा रहा था। किसान दो फसलें तो उगा रहे थे, मतलब हर साल की उगा रहे थे, लेकिन वो जो भी उनसे रेवेन्यू कलेक्ट करने आते थे उनको वो कुछ भी नहीं देते थे। अपनी पीजेंट रिप्स को वो ऐसे मतलब
ऐसे दे रहे थे जैसे कि वो सोना दे रहे हो, है ना, सोना बेच रहे हो। ठीक है, इतना मजबूर कर दिया था उन्होंने। किसान भी अब, है ना, अपनी फसल को जो रेवेन्यू के तौर पर उनको नहीं दे रहे थे। अब अगर ऐसा था, अब अगर ऐसा था, उनको रेवेन्यू भी नहीं जा रहा था, मुग़ल एम्पायर को, मुग़ल एम्पायर को रेवेन्यू नहीं जा रहा था अगर, तो वो सोल्जर्स को क्या पे करते हैं ना, सोल्जर्स की सैलरीज कैसे देते, है ना, जो 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 हॉर्समैन उनके आगे पीछे चलते रहते हैं उनको वो क्या देते। तो इस सिचुएशन को एक्सप्लेन किया है उस टाइम के ही, उसी टाइम के किसी कॉन्टेम्प्ररी राइटर ने, कि ये हाल हो गए थे मुग़ल एम्पायर के, है ना। तो इतना वीक हो गया था मुगल एम्पायर। इन द मिडस्ट ऑफ दिस इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्राइसिस, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्राइसिस, ये जब ये चल रहा था, रूलर ऑफ ईरान जिसका नाम नादिर शाह था, रूलर ऑफ ईरान जिसका नाम नादिर शाह था, इसने दिल्ली पर आक्रमण किया। ही हैज़ plundered the city of Delhi in 1739. You have to remember this date, in 1739, when this Nadir Shah has plundered the city of Delhi in 1739, and took away the immense amount of wealth. ठीक है, जो भी कीमती चीज़ें थी सब ले गया ये नादिर शाह। ठीक है, नादिर शाह के बाद एक और अफ़गान रूलर था, ये आते थे और तबाही मचा के चले जाते थे और सब लूट कर लेकर चले जाते थे अफ़गान रूलर से। दूसरा था अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली ने कितने टाइम आक्रमण किया और कितने बार नॉर्थ इंडिया में आया, वो 5 टाइम्स उसने आक्रमण किया, यहाँ पे इन्वेड किया 1748 से 1761 के पीरियड में। इस टाइम पीरियड में वो 5 बार नॉर्थ इंडिया में आया और दिल्ली से कितनी सारी चीज़ें लूट कर चला गया। यहाँ पे किसी ने ये अकाउंट लिखा है, उसी टाइम के ऑब्जर्वर ने, कॉन्टेम्प्ररी ऑब्जर्वर है, प्रेक्षक है, जिसने ये लिखा हुआ है अकाउंट कि उस टाइम क्या हुआ था। द डिवास्टेशन ऑफ दिल्ली आफ्टर नादिर शाह इन्वेजन वाज डिस्क्राइब्ड बाय वन कॉन्टेम्प्ररी। तो किस तरह से मुग़ल ट्रेजरी को लूटा गया, तो यहाँ पे लिखा गया है कि कितने 60 लाख रुपए, हज़ारों गोल्ड कॉइन्स, 1 करोड़ वर्थ ऑफ गोल्ड वेयर, है ना, 1 करोड़ के सोने की जो बर्तन थे, फिर 50 करोड़ के जो ज्वेल्स थे, है ना, हीरे जवाहरात वगैरह थे, एंड ऐसी चीज़ें जिनका दुनिया में कोई मुकाबला ही नहीं है, और पीकॉक थ्रोन, है ना, ये भी सब नादिर शाह ले गया, ये भी सब नादिर शाह ले गया। उसके आक्रमण के कारण क्या क्या हुआ दिल्ली में, है ना, जो भी मतलब बड़े बड़े लोग थे वो इतने गरीब हो गए, जो कभी नए नए कपड़े पहनते थे वो अब नंगे घूमने लगे, है ना, वो बैगर बन गए, जिनके पास पैसे थे, दौलतमंद थे, वो बैगर हो गए, है ना। ये सब उसने लिखा हुआ है। न्यू सिटी शाहजहांबाद थी जो, वो एक मतलब पूरी तबाह हो गई, एक मलबे के ढेर में तब्दील हो गई, रब्बल में तब्दील हो गई। फिर उसके बाद उसने पुरानी दिल्ली के, जहाँ पे पुरानी सिटी बसी हुई थी, वहाँ के घरों को भी एकदम तबाह कर दिया। सो इस तरह से चारों ओर से प्रेशर थे मुग़ल एम्पायर पे, चारों तरफ से प्रेशर ही प्रेशर थे, और ये मुग़ल एम्पायर वीक होता ही चला गया। अब ये डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ नॉवेल्स थे, इनको टू मेजर ग्रुप ऑफ फैक्शंस में डिवाइड किया गया है। जो इनकी ये जो नावल्स हैं, इनकी वजह से भी मुग़ल एम्पायर और वीक हुआ। 2 नावल्स कौन थे, एक तो ईरानीज़ थे, ठीक है, और एक तुरानीज़ थे। तुरानीज़ यानी तुर्किश डिसेंडेंट, जो अपने आपको तुर्किश डिसेंडेंट यानी उनके वंश का मानते थे। इनके बीच भी एक तरह से काफ़ी लड़ाई थी। फॉर अ लॉन्ग टाइम द लेटर मुग़ल एम्पायर्स वर puppet in the hands of either one or the other of these two powerful groups। ना, ये जो ईरानीस और तुरानीस थे, ये इनके ही पपेट बने रहते थे, इनके हाथ की कठपुतली बने रहते थे ये मुग़ल एम्पायर्स, है ना। द वर्स्ट पॉसिबल ह्यूमिलिएशन केम, है ना, एक वर्स्ट पॉसिबल ह्यूमिलिएशन ये कब
आई मतलब एक ऐसी स्थिति, एक ऐसी बुरी स्थिति जब मुग़ल एम्पायर, दो मुग़ल एम्पायर, एक फारूकसियर और दूसरा था आलमगीर सेकंड, इन दोनों को मार डाला गया, इन दोनों को मार दिया गया। एंड टू अदर्स जिसमें अहमद शाह है और शाह आलम सेकंड है। इनको इनको कैद करके इनको मतलब ब्लाइंड कर दिया गया बाय द नॉबल्स जो भी अभी ज्ञान थे। emergence, now we will see the emergence of new states है ना। मुगल एम्पायर वीक हुआ, मुगल एम्पायर वीक हुआ और नई नई स्टेट्स का ओरिजिन हुआ। जो भी सूबेदार थे, गवर्नर थे, उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। विद द डिक्लाइन in the authority of the Mughal emperors, the governor of large provinces, सूबेदार, ग्रेट जिमींदार consolidated their authority है ना। उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। broadly speaking, the states of the 18th century can be divided into three overlapping groups, can be divided into three overlapping groups। मोटे तौर पर हम तीन ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं इन न्यू स्टेट्स को, जो न्यू स्टेट्स एमर्ज हुई है ना मुगल एम्पायर के टूटने पर। जो नई स्टेट्स एमर्ज हुई उनमें से कौन कौन सी आती हैं? एक तो वो हो गई जो ओल्ड मुगल प्रोविंसेस थी, जिनमें आ जाता है अवध वाला एरिया, बंगाल और हैदराबाद आ जाता है। ठीक है, ये काफ़ी पावरफुल और इंडिपेंडेंट स्टेट्स थी। ठीक है, लेकिन इन्होंने अपने आप को बिल्कुल मुगल एम्पायर से कट नहीं किया। उनका एक तरह से फिर भी ये उनको मुगल एम्पायर को मानते थे, रूलर्स को मानते थे। दूसरे नंबर पे वो स्टेट्स आ जाती हैं, स्टेट्स दैट हैड enjoyed considerable independence under मुगल्स एज वतन जागीर्स। ये भी ये इंडिपेंडेंट पहले से ही इंडिपेंडेंट थे और मुगल एम्पायर को मानते थे। दिस इंक्लूडेड सेवरल राजपूत प्रिंसिपलिटीज भी आ जाती हैं इसमें। तीसरा ग्रुप आता है स्टेट्स अंडर द कंट्रोल ऑफ मराठास, सिख्स एंड जाट्स। ये वो लोग हैं, ये वो एरियाज हैं इन लोगों ने जो कैप्चर कर रखे थे और छीने थे, इनफैक्ट सीज करके रखे थे। किससे? मुगल्स से है ना। इनके साथ उनकी आर्म्ड स्ट्रगल होती रहती थी, सिखों की, जाटों की, मराठों की। तो ये वो स्टेट्स आ जाती हैं जो इन लोगों ने अपने कंट्रोल में कर ली थी, मुगल एम्पायर से छीन ली थी ना और अपना कंट्रोल कर लिया था। तो ब्रॉडली हमने इन तीन ग्रुप्स में इसको डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले अब देखते हैं हम ओल्ड मुगल प्रोविंसेस के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो ये ओल्ड मुगल प्रोविंसेस में जो मेजर जो एरिया हमने देखे, अवध, बंगाल और हैदराबाद, इनके बारे में भी एक एक करके स्टडी करेंगे। तो किस तरह से इनके गवर्नर्स को नियुक्त किया और गवर्नर्स ने ही खुद को इंडिपेंडेंट बोल दिया और उस एरिया पे कंट्रोल करना शुरू कर दिया, वो सब यहाँ बताया गया है। सो among the states that were carved out of the Mughal Empire, Mughal provinces in the 18th century, 3 stand out very prominently। 3 तो मेन थी, एक अवध होगी, दूसरी बंगाल एंड थर्ड वन इज हैदराबाद। तो ये मुगल नोबिलिटी द्वारा फाउंड की गई थी, मुगल नोबिलिटी के मेंबर्स द्वारा फाउंड की गई थी, who had been the governors of large provinces, ये जो इनको मुगल एम्पायर ने गवर्नर बनाया था इस एरिया का, इन एरियाज़ का गवर्नर बनाया था और ये खुद ही बाद में इंडिपेंडेंट हो गए, अपने आप को इन्होंने बता दिया। ये सादत खान ने अवध में कंट्रोल किया था, मुर्शीद कुली खान ने बंगाल में और आसफ जाह ने हैदराबाद में। All three had occupied mansabdari positions है ना, and the enjoyed the trust and confidence of the empire। तो इनको इतने बड़े बड़े एरियाज दिए थे कंट्रोल करने के लिए और उसी पोजीशन का इन्होंने फ़ायदा भी उठाया। नाउ both आसफ जाह एंड मुर्शीद कुली खान held a ज़ात रैंक ऑफ 7,000 ईच है ना। इनकी इस तरह से रैंक हुआ करते थे और अपना मिलता था इनको, वाइल सादत खान ज़ात बाज 6,000। Okay, first of all we have seen about the old Mughal provinces, and in old Mughal provinces there is Hyderabad also। In Hyderabad, Nizam ul Mulk Asaf Jah
who is considered as the founder of the हैदराबाद स्टेट, है ना. फाउंडर ऑफ द हैदराबाद स्टेट कौन है? निज़ाम उल मुल्क आसफ जहाँ. 1724 से 1748 तक रूल रहा. ये सबसे मोस्ट पावरफुल मेंबर है ऑफ द कोर्ट ऑफ द मुगल एम्पायर फारूकसियर. ओके, मुगल एम्पायर फारूकसियर. He was entrusted first with the governorship of Awadh. ओके, निज़ाम उल मुल्क आसिफ ज़ा को उससे पहले अवध का गवर्नर बनाया गया था. बाद में इसको डेक्कन का चार्ज दे दिया गया. डेक्कन यानी ये हैदराबाद का. द मुगल एम्पायर द डेक्कन चार्ज ड्यूरिंग 1720 to 1722, इस टाइम के बीच. और आसिफ जहाँ ने इस टाइम पीरियड में ही काफ़ी कंट्रोल गेन कर लिया था हैदराबाद पे, है ना. वहाँ के फाइनेंशियल रिसोर्सेज पे, एडमिनिस्ट्रेशन पे काफ़ी कंट्रोल कर लिया था ऑलरेडी ही. जो टर्माइल चल रहा था डेक्कन में, जो परेशानी चल रही थी औरंगजेब के साथ, तो उसका इसने फ़ायदा उठाया था. इस बीच इसने काफ़ी पावर अपने हाथों में ले ली थी और वहाँ की सारे रिसोर्सेज पे, रेवेन्यू पे, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन पे, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन पे कंट्रोल कर लिया था. ठीक है. and become the actual ruler of that region. This Asaf Zah brought skilled soldiers and administrators from northern India. तो ये सब लोगों को इसने अपॉइंट किया, स्किल्ड सोल्जर्स को, एडमिनिस्ट्रेटर्स को नॉर्थ इंडिया से लाया और उसने अपॉइंट किया. और इन मनसबदार और इस सब का उन लोगों ने स्वागत भी किया क्योंकि उनको साउथ में सर्व करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही थी. He appointed मनसबदार and granted जागीर्स. मनसबदार को अपॉइंट किया इसने आसिफ ज़ा ने. ठीक है, आसिफ ज़ा ने मनसबदार को अपॉइंट किया और उनको अलग अलग एरियाज पे अपॉइंट किया. Although he was still a servant of the Mughal Emperor, he ruled quite independently. मुगल एम्पायर का सर्वेंट ही था बेशक वो, लेकिन उसने फिर भी इंडिपेंडेंटली रूल किया, है ना, बिना उनकी इंटरप्शन के. जहाँ तो इस तरह से वो जो भी करता था, दिल्ली से कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होती थी. मुगल एम्पायर सिर्फ उसके डिसीजन को कंफर्म करता था, जो कि निज़ाम उल मुल्क पहले ही डिसीजन ले चुका होता था. ठीक है. तो इस तरह से मुगल एम्पायर का कोई ज़्यादा कंट्रोल था नहीं, कोई कंट्रोल नहीं था हैदराबाद पर. और हैदराबाद को अपनी मर्जी से आसिफ ज़ा चला रहा था. This state of Hyderabad was constantly engaged in struggle against the Marathas, है ना. मराठास के साथ भी इनके युद्ध होते रहते थे to the west and with independent तेलुगु वारियर चीफ्स. इनके साथ भी काफ़ी ज़्यादा विद्रोह का सामना करना पड़ता था टाइम टू टाइम. निज़ाम उल मुल्क का एम्बिशन and the ambition of Nizam ul Mulk Asif Zah to control the rich textile producing areas of Coromandel Coast in the east. ठीक है, यहाँ पे इसने अपना कंट्रोल करना चाहा था, लेकिन ब्रिटिशर्स ने ऐसा नहीं करने दिया क्योंकि ब्रिटिशर्स ऑलरेडी इस एरिया में काफ़ी पावरफुल हो चुके थे. कौन से एरिया में? कोरोमंडल कोस्ट वाले एरिया में, जो कि काफ़ी रिच था. किसमें? टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग एरिया था. वहाँ पे कपड़े वगैरह के उद्योग काफ़ी ज़्यादा थे. अब निज़ाम की आर्मी का उसके ही ट्रूफर्स ने वर्णन किया है. यहाँ पे लिखा है कि निज़ाम हैड सवारी 400 एलिफेंट. उसके पास 400 एलिफेंट्स थे, हज़ारों हॉर्समैन थे, है ना. 100 रुपये का नॉमिनल पे उनको दिया जाता था और काफ़ी अच्छी पोजीशन उनको दी जाती थी, है ना, जो भी उसकी आर्मी में लोग होते थे. Now we will read about Awadh. Burhan ul Mulk Sadat Khan was appointed Subedar of Awadh in 1722 and founded a state which was one of the most important to emerge out of the breakup of the Mughal Empire. अब ये अवध कहाँ पर है? आपने मैप में देखा. अवध जो अब इस टाइम उत्तर प्रदेश का एरिया है, मैक्सिमम उत्तर प्रदेश का एरिया अवध में आता है. ये अवध काफ़ी फर्टाइल एरिया था. गंगा रिच एल्यूवियल सॉइल है यहाँ की, गंगा प्लेन की, है ना. तो यहाँ पे फसलें काफ़ी ज़्यादा होती थी.
controlling the rich alluvial Ganga plain and the main trade route between North India and Bengal. तो ये नॉर्थ इंडिया और बंगाल के बीच का जो ट्रेड रूट था, नॉर्थ इंडिया एंड बंगाल के बीच का ट्रेड रूट था ये एरिया। तो बुरहान उल मुल्क जिसने जो इस एरिया का गवर्नर था, उसने ये 3 ऑफिस को अपने कंट्रोल में ही रखा था। कौन कौन से 3 ऑफिस? एक तो सूबेदारी, दूसरी दीवानी और तीसरी फौजदारी। अब ये सूबेदार, दीवानी और फौजदारी क्या है? यानी पॉलिटिकल। सूबेदारी जैसे गवर्नर होता है, पॉलिटिकल पावर भी उसके पास थी, फाइनेंशियल पावर यानी दीवानी भी उसके पास थी, एंड थर्ड फौजदारी यानी मिलिट्री अफेयर्स, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन अवध की, सारे उसके हाथों में कंट्रोल। ये सारा कंट्रोल किसके हाथ में था? इस बुरहान उल मुल्क के हाथ में, ठीक है, जो कि गवर्नर जिसको नियुक्त किया था मुगल एम्पायर्स ने। कैसे किया बुरहान उल मुल्क ने अपने पावर को कैसे बढ़ाया? उसने मुगल इन्फ्लुएंस को सबसे पहले रिड्यूस करना शुरू कर दिया कि मुगलों का प्रभाव धीरे धीरे कम हो जाए। तो उसने क्या किया कि जो भी ऑफिस होल्डर्स थे, जिनको जागीरदार कहा जाता था, उनको कम किया पहले। मुगलों के जो ऑफिस होल्डर्स थे उनको कम करना शुरू कर दिया। किसने? बुरहान उल मुल्क ने। कहाँ पर? अवध में, ठीक है। ये आल्सो रिड्यूस द साइज ऑफ द जागीरों का साइज भी उसने कम करना शुरू कर दिया, और अपने जो लॉयल सर्वेंट्स थे, है ना, जो उसके विश्वास वाले लोग थे, उनको उसने अपॉइंट किया, जो भी वेकेंट पोजीशन थी उसमें। बाकी इनके नंबर्स को कम किया, जो ऑफिस होल्डर को, जो कि मुगल एम्पायर के द्वारा अपॉइंट किए जाते थे। द अकाउंट ऑफ जागीरदार वर चेक्ड टू प्रिवेंट चीटिंग एंड द रेवेन्यूज ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट्स वर रीअसेस्ड। इसने जो भी पैसा आता था, जो भी रेवेन्यू आता था, उसको रीअसेसमेंट करना शुरू की उसकी, कि कहाँ से कितना आता है। और इसने साथ ही साथ राजपूत जो ज़मींदार से उनसे लैंड सीज कर ली, और जो एग्रीकल्चरल फर्टाइल लैंड्स थे अफगान्स ऑफ रोहिलखंड। ये रोहिलखंड कौन सा एरिया है? ये उत्तराखंड और कुछ एरिया आज जो यूपी है उसका एरिया, वो ये रोहिलखंड वो एरिया है, ठीक है। आप मैप में भी देख सकते हैं, आपकी बुक में भी दे रखा है एनसीईआरटी की। तो वहाँ के एरिया को भी सीज कर लिया किसने? बुरहान उल मुल्क ने, अपने अवध में मिला लिया उसको। द स्टेट डिपेंडेड ऑन लोकल बैंकर्स एंड महाजन्स फॉर लोन्स। इस तरह से जो स्टेट थी वो किसके ऊपर डिपेंड होने लगी थी? अब लोकल बैंकर्स के ऊपर। पहले तो रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था फार्मर से, तो इस तरह से स्टेट चलती थी। लेकिन अब एक नई चेंज आई। क्या नई चेंज थी वो? कि अब बैंकर्स के ऊपर स्टेट डिपेंड होने लगी, है ना। स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन डिपेंड होने लगी, महाजन्स पे डिपेंड होने लगी, इनसे लोन लिया जाता था। इट सोल्ड द राइट टू कलेक्ट टैक्स टू द हाईएस्ट बिडर्स, है ना, जो सबसे ज़्यादा बोलता था पैसे देने के लिए, तो उसको टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार दे दिया जाता था। रेवेन्यू फार्मर्स थे, जिनको इजारादास कहते थे, ये आपको याद रखना है। इजारादास किसको बोलते हैं? रेवेन्यू फार्मर्स को। तो इन रेवेन्यू फार्मर्स ने स्टेट को कह दिया कि वो इतना पैसा हर साल देंगे, और उनको अधिकार दे दिया जाए रेवेन्यू कलेक्ट करने का, टैक्स कलेक्ट करने का। लोकल बैंकर्स ग्रांटेड द पेमेंट ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट टू द स्टेट, है ना। लोकल बैंकर्स ने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया कि वो स्टेट को या गवर्नमेंट को, ये अवध की गवर्नमेंट को पर्टिकुलर फिक्स टाइम पे ये इतना पैसा देते रहेंगे। तो इन रेवेन्यू फार्मर्स को काफ़ी फ्रीडम दी गई कि वो अपना रेवेन्यू असेसमेंट कर सकते हैं, कलेक्शन टैक्सेस कलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से इस सिस्टम की वजह से न्यू सोशल ग्रुप्स एमर्ज हुए। व्हाट वर दैट न्यू सोशल ग्रुप्स? दीज वर मनी लैंडर्स एंड बैंकर्स। ऐसा हिस्ट्री में पास्ट में कभी नहीं हुआ था, है ना। स्टेट को इन पे डिपेंड होना पड़ा था, है ना। उनको रेवेन्यू कलेक्ट करने के राइट दे दिए थे। So this has happened, the management of the state revenue system, something which had not occurred in the past. Now we will study about the Bengal. बंगाल में बंगाल के गवर्नर कौन था? मुगल ने किसको कंट्रोल दिया था बंगाल का? मुर्शीद कुली खान, जो कि गवर्नर भी नहीं था बल्कि नायब था। नायब यानी
टू द गवर्नर, है ना, गवर्नर से भी छोटी पोजीशन होती है। तो ही वॉज डेप्यूटी टू द गवर्नर ऑफ द प्रोविंस। वो फॉर्मल सूबेदार नहीं था, लेकिन मुर्शीद कुली खान ने बहुत जल्दी पावर को सीज करना शुरू कर दिया। लाइक द रूलर्स ऑफ हैदराबाद एंड अवध, ही आल्सो कमांडेड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे पहले जहाँ पैसा आता था उस पर उसने कंट्रोल करना शुरू कर दिया। इस तरह से उसने रिड्यूस किया मुग़लों का इन्फ्लुएंस। बंगाल में मुग़लों का इन्फ्लुएंस धीरे धीरे उसने कम करना शुरू कर दिया। किसने? मुर्शीद कुली खान ने। उसने सभी जो मुग़ल जागीरदार से उनको उड़ीसा में ट्रांसफ़र कर दिया और ऑर्डर्ड मेजर रीअसेसमेंट ऑफ द रेवेन्यूज, है ना। फिर से दोबारा उसने रीअसेस कराया कि रेवेन्यू स्टेट का, यहाँ का, बंगाल का कितना होता है। और रेवेन्यू को कैश में कलेक्ट किया जाता था, रेवेन्यू को कैश में कलेक्ट किया जाता था और काफ़ी स्ट्रिक्टनेस रखी थी ज़मींदार पे। तो धीरे धीरे ऐसा हुआ कि ज़मींदार को बारो करना पड़ता था, लोन लेना पड़ता था बैंकर से और मनी लैंडर से, और जब कभी वो लोन नहीं दे पाते थे तो उनकी ज़मीन को ले लिया जाता था और उसी ज़मीन को बड़े ज़मींदारों में बेच दिया जाता था, सेल कर दिया जाता था। So the formation of the regional states in the 18th century Bengal therefore led to considerable change amongst the zamindars. Okay, इस 18th century में क्या हुआ? The formation of a regional state in Bengal therefore led to considerable change among the zamindars. ये जो क्लोज कनेक्शन था स्टेट का और बैंकर्स का, ये डेवलप हो गया, है ना। इनको राइट एरिया रेवेन्यू कलेक्ट करने का ज़मींदार की पोजीशन वीक हुई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। हैदराबाद एंड अवध एज वेल एज एविडेंट इन बंगाल अंडर द रूल ऑफ अलीवर्दी खान। ड्यूरिंग हिज रीजन द बैंकिंग हाउस ऑफ जगत सेठ बिकम एक्सट्रीमली पावरफुल। बैंकिंग हाउस यानी जो बैंकिंग सर्विसेज देता था, कौन? जगत सेठ। ये काफ़ी हिट हुआ था इस यहाँ पे दुकान में। इफ़ वी टेक द वर्ड आई व्यू, अगर हम शॉर्ट में देखें, इफ़ वी टेक अ वर्ड्स आई व्यू वी कैन डिटेक्ट 3 कॉमन फीचर्स। 3 कॉमन फीचर्स हमने क्या देखे? इन सभी स्टेट्स में, यानी अवध, हैदराबाद और बंगाल में कॉमन फीचर्स हमने क्या देखे? पहला तो ये है, फर्स्ट क्या है, ये स्टेट किसने एस्टैब्लिश की? एस्ट बाय जो कि पहले मुगल नॉबल्स थे, उनके गवर्नर्स थे, सूबेदार्स थे। दे वर हाईली सस्पिशियस ऑफ सम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स दैट दे हैड इनहेरिटेड, इन पर्टिकुलरली द जागीरदार सिस्टम। ठीक है, उनको विश्वास नहीं था उस सिस्टम पे। सेकंड, देयर मेथड ऑफ टैक्स कलेक्शन डिफर्ड, है ना। इन्होंने टैक्स कलेक्शन का मेथड ही बदल डाला। जो कि पहले रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था ज़मींदारों के थ्रू, अब तो इन्होंने वीडर्स को दे दिया, जो ज़्यादा पैसा बोलेगा, जो टैक्स कलेक्ट करके देगा, रेवेन्यू फार्मर्स को बोल दिया, है ना। तो मनी लैंडर वगैरह, इनका ये नए सोशल ग्रुप्स उभर कर आए जो कि हिस्ट्री में पहले कभी नहीं हुआ था। rather than relying on officers of the state, all 3 regimes contracted with revenue farmers for the collection of revenue, है ना। ये सभी रिजाइम किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया गया? रेवेन्यू फार्मर्स के साथ, कि वो टैक्स कलेक्ट करके दे देंगे किसको? स्टेट को, स्टेट यानी गवर्नमेंट को। ठीक है। द प्रैक्टिस ऑफ इजारादारी, है ना, इजारादारी, ये जिसको मुगल्स कभी अप्रूव नहीं करते थे, ये पूरे देश में फैल गई। ये इजारादारी पूरे देश में फैल गई। ये इजारादारी का सिस्टम पूरे देश में फैल गया, जिसका मुगल्स हमेशा से ही विरोध करते थे। देयर इम्पैक्ट ऑन द कंट्री साइड डिफर्ड कंसिडरेबली, यानी जो गांव वाले रूरल एरियाज थे, इसका असर वहाँ पे काफ़ी अलग तरीके से पड़ा। तीसरा कॉमन फीचर क्या था? तीसरा कॉमन फीचर ये था कि जो रीजनल स्टेट्स थी उनके रिलेशनशिप बढ़ते जा रहे थे, किसके साथ? रिच बैंकर्स और मर्चेंट के साथ। रिच बैंकर्स और मर्चेंट के साथ ये लोग क्या करते थे? बैंकर्स और मर्चेंट्स ये पैसा देते थे रेवेन्यू फार्मर्स को, लैंड रिसीव करते थे एज सिक्योरिटी एंड कलेक्टेड टैक्सेस फ्रॉम दिस लैंड थ्रू देयर ओन एजेंट्स। ठीक है, ये
रिच बैंकर्स एंड मर्चेंट्स, ये सब करते थे, पैसा कलेक्ट करते थे, रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। थ्रू आउट इंडिया द रिचेस्ट मर्चेंट्स एंड बैंकर्स वर गेनिंग स्टेक इन द न्यू पॉलिटिकल ऑर्डर। तो इन लोगों का भी पॉलिटिक्स में काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल बढ़ने लगा था, क्योंकि स्टेट को यही लोन दे रहे थे। ओके, नाउ द वतन जागीर्स ऑफ द राजपूत, वतन जागीर्स ऑफ द राजपूत। ये वतन जागीर्स हमने 3 ग्रुप में डिवाइड कर रखा था ना, कि किस तरह से न्यू स्टेट्स का ओरिजिन हुआ। अब ये वतन जागीर्स कौन से एरिया थे? मैनी राजपूत kings, particularly those belonging to Ambher and Jodhpur, had served under the Mughal with distinction. Okay, ये इन्होंने मुगल के अंडर ही काम किया है, रूल किया है इन एरियाज़ में, लेकिन इंडिपेंडेंटली रूल किया है। काफ़ी ऑटोनमी इनको रही है ना, आज़ादी रही है अपने अकॉर्डिंग रूल करने की। इन्होंने अपने जो आसपास के एरिया थे उन पर अपना कंट्रोल बढ़ाया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अजीत सिंह जो रूलर थे जोधपुर के, उनकी भी उन्होंने भी काफ़ी एरियाज़ पे अपना कंट्रोल बढ़ाया है ना। ही वाज द रूलर ऑफ जोधपुर के रूलर थे ये। ही वाज आल्सो इन्वॉल्व इन द फैक्शनल पॉलिटिक्स एट द मुगल कोर्ट। तो मुगल्स के अकॉर्डिंग ये भी काम करते थे। These influential Rajput families claimed the सूबेदारी of the rich provinces of गुजरात एंड मालवा। गुजरात एंड मालवा के जो एरिया थे वहाँ की जो रेवेन्यू राइट्स थे, सूबेदारी इनको मिल गई। राजा अजीत सिंह जो जोधपुर के थे, इनको गवर्नरशिप किसकी मिल गई? गुजरात की। और सवाई राजा जय सिंह जो अम्बेर के थे वास गवर्नर ऑफ मालवा। दिस ऑफिस किसके द्वारा रिन्यू किए गए थे ये ऑफिस? एम्पायर जहांदार शाह जो मुगल एम्पायर थे 1713 में इन ऑफिस को ऑलरेडी रिन्यू किया जा चुका था। और इन लोगों को राजपूत फैमिलीज के जो लोग थे इनको सूबेदार इन एरियाज़ का गवर्नरशिप दे दी गई। राजा अजीत सिंह को गुजरात और सवाई राजा जय सिंह को अम्बेर के जो राजा थे वहाँ इनको मालवा दे दिया गया, मालवा का गवर्नर बना दिया गया। ठीक है, राजा जय सिंह ऑफ अम्बेर वाज गवर्नर ऑफ मालवा, अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ मालवा। They also tried to extend their territories by seizing portions of imperial territories neighboring their वतन्स ना। इन्होंने आसपास के एरिया को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। नागौर को जीत लिया और अपने हाउस ऑफ जोधपुर में मिला लिया। अम्बेर को सीज कर दिया और बूंदी के कुछ इलाकों को सीज कर लिया, कंट्रोल कर लिया। सवाई राजा जय सिंह फाउंडेड हिज न्यू कैपिटल एट जयपुर। जयपुर में इन्होंने अपनी कैपिटल एस्टेब्लिश की। ये काफ़ी पावरफुल रूलर बन चुके थे एंड वाज गिवन द सूबेदारी ऑफ आगरा इन 1722। आगरा की सूबेदारी इनको 1722 में मुगलों द्वारा दे दी गई। मराठा कैंपेन्स इनटू राजस्थान फ्रॉम द 1740, जो मराठा की कैंपेन शुरू हो गई थी उन्होंने राजस्थान में फ्रॉम 1740। इसने भी काफ़ी प्रेशर डाला कि जो ये मुग़ल एम्पायर था ये अब आगे नहीं फैल पा रहा था। ठीक है, दिस इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ राजा जय सिंह ऑफ जयपुर। राजा जय सिंह के बारे में पर्शियन अकाउंट है कि फ़ारसी भाषा में लिखा गया है। 1732 का एक अकाउंट है, उसमें क्या लिख रखा है कि जो राजा जय सिंह था वो काफ़ी पावरफुल था, है ना। ये आगरा का गवर्नर 12 साल रहा और मालवा का 5 से 6 साल गवर्नर रहा। उसके बाद बहुत बड़ी आर्मी थी, आर्टिलरी थी, बहुत ज़्यादा वेल्थ थी। ओके, हिज वे एक्सटेंडेड फ्रॉम दिल्ली टू द बैंक्स ऑफ नर्मदा, है ना। इतना बड़ा एरिया इसने अपने कंट्रोल में रखा था। किसने? राजा जय सिंह। तो आज इतना ही रखेंगे, अब हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।